हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज सिमरन मक्कड़ एंड आई एम अ साइंस एक्सपर्ट। और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स टर्म 2 चैप्टर 8 लेकर आई हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के समरी पॉइंट्स और व्हाट यू हैव लर्न्ड पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, it is reproduction. Unlike another life processes, it is not essential to maintain the life of an individual organism. आप लोगों को पता होना चाहिए what is the meaning of reproduction. I hope ये point आप लोगों को understood है. Reproduction क्या है? Reproduction means the production of the offspring, just like of the parent. It is this process, it is known as a reproduction, and it is a very important process of our life cycle. रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर अपरेटस बाय द सेल involved in the process. This is very important point. You have to learn that point, what the things that are included in the process of reproduction. Various organisms uses different mode of reproduction depending upon their body design. ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ रखे होंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये उसी के बारे में थर्ड पॉइंट था. इन फिजन, you know that what is the meaning of the fission. Fission means breaking down and the fusion means to combine together. Here we are discussing about the fission means to breaking down. In fission, and it is also a sexual mean of mode of reproduction. In fission many bacteria, fission में बहुत सारे bacteria, protozoas simply divide into 2 or more daughter cells. यहाँ पर division word इसीलिए बोला है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर word use करा है fission. Fission means to break down. ठीक है, तो ये point भी आप लोगों को clear है. Organisms, अब यहाँ पर दूसरे organisms की बात की गई है, such as hydra. ये hydra कैसे regenerate होता है? It is regenerate if they are broken into pieces. जब ये hydra, जब ये pieces में break down हो जाएगा तब ये generate होगा into new species. They can also give out birds which mature into new individual. This is also the way with the help of hydra can regenerate. Now I am moving toward the next point. Roots, stems and leaves of some plants develop into new plant through the vegetative propagation. You know that सिर्फ एक seed ही एक ऐसा part नहीं है with the help of which the plant can reproduce. There are another ways with the help of which we can produce a new plant. These part are roots, stem and leaves. So the production of the new plants with the help of these part of the plant, they are known as a vegetative propagation. It is clear to all of you. This is very important. Now I am going toward the next point. These are the examples of asexual reproduction. मैंने आप लोगों को बताया कि reproduction की definition बहुत important है. There are two type of the reproduction, sexual and asexual. ये जो points जितने भी आप लोगों ने from third point to this point जितने भी पढ़े आप लोगों ने, these are the examples of asexual reproduction where new generations are created from a single individual. No two parents are involved. With, we can produce a baby or we can produce a daughter with the help of the single parent also. So this process, or with the help of which in which a single parent is involved, this type of reproduction, it is known as asexual reproduction. Now I am going toward the next type of the reproduction, that is sexual reproduction, which involves two individuals. One is male and one is female for the creation of new individual. This type of reproduction, it is known as sexual reproduction. I hope it is clear to all of you. Now I am moving toward the last point of the screen, DNA copy mechanism. DNA copy mechanism creates variations which are useful for ensuring the survival of the species. Modes of sexual reproduction allow for greater variation to be generated. I hope it is clear to all of you. जो हमारी DNA copy mechanism है ये क्या create करती हैं? They create variations which are useful for ensuring the survival for the species. Now I am moving toward the next summary point of this chapter. Reproduction in flowering plant. Flowering plant की बात करते हैं, उनमें जो reproduction होती है, it involves the transfer of pollen grain from anther to the stigma, which is referred as pollination. This is a definition of the pollination, and this is very important from the examination point of view. This is followed by the fertilization. I hope it is clear to you. आप लोगों ने इसको learn करना है. Changes in the body at puberty.
such as increases in breast size in girls and new facial hair growth in boys are the signs of sexual maturation. ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट्स अपने चैप्टर में पढ़ लिए होंगे. जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, डॉल्सन्स पीरियड स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मेल, दिस वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. ठीक है, ये सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है. The male reproductive system in human beings consists of testes which produce sperms, vas deferens, seminals, vesicles, prostate glands, urethra and penis. These are the different reproductive system that consist of a male. अगर हम बात करते हैं the female reproductive system in human being consists of ovaries, fallopian tubes, uterus and vagina. These are the different reproductive organs or the part of the female reproductive system. Sexual reproduction in human beings involves the introduction of sperm into the vagina of the female. Fertilization occurs in the fallopian tube. ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में कर लिया. What is the fertilization? The fusion of the male gamete with the female gamete. It is known as the fertilization. ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ पर होती है? अकर इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इन द फिलोपियन ट्यूब, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू. ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगी नेक्स्ट, जो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, इट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड द प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय द यूजेस ऑफ कॉन्डम्स, ऑरल पिल्स, copper tea and the another method with the help of which we can avoid the pregnancy. I hope these points are clear to all of you. Now students, अब हम चलते हैं झटपट से हमारे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों की हेल्प करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाने में. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं. आप लोगों को मैंने पहले भी जो वीडियोस आप लोगों के पास दी हैं, आप लोगों को बताया कि जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों को A, B, C, D इस तरीके से आप लोगों के पास 4 स्टेटमेंट्स होती हैं. झट से पढ़ते हैं. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू. आप लोगों को एक असर्शन दिया होगा, एक रीजन. आप लोगों को बहुत आराम से असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है. आप लोगों को मैंने जो इससे पहले वीडियो आप लोगों तक सेंड करी है, मैंने आप लोगों को उसमें टाइम लिमिट की बात करी है. बच्चे बिना सोचे समझे आप जब अपना क्वेश्चन पेपर पकड़ो, आप देखो आपके पेपर में कितने सेक्शंस हैं, आपके पास कितना टाइम लिमिट है. आपके पास अगर 90 मिनट्स हैं और 3 सेक्शंस हैं तो आप लोग हर सेक्शन के लिए प्लीज़ अपनी घड़ी सामने रखिए, हर सेक्शन के लिए 30 मिनट्स दीजिए. प्लीज़ मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, 30 मिनट्स हर सेक्शन के लिए दीजिए. अगर आप हर सेक्शन को 30 मिनट देंगे तो आपका 90 मिनट में आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है. अगर आप टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे ना, अब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप लोगों की मेहनत एक तरफ और आपकी जो ये जो टाइम लिमिट को आप जो देखोगे ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे. क्योंकि जनरली हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन को तो बड़े तरीके से आराम से करेंगे और दूसरी सेक्शन के लिए थोड़ा कम समय, और पता चला सेक्शन सी आते आते तो टाइम ही नहीं बचा, तो वो सारी करी धरी मेहनत सब खत्म हो जाती है क्योंकि टाइम लिमिट नहीं था हमारे पास, हम लोगों ने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करा. ठीक है, तो आप लोगों को टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना है कि आपका हर सेक्शन बड़े तरीके से कंप्लीट हो. देखते हैं बेटा असर्शन रीजन की तरफ. आप लोगों को बताया मैंने, अगर आपके असर्शन रीजन्स आते हैं, एक आपकी स्टेटमेंट असर्शन के लिए होगी और एक रीजन के लिए होगी, और उन पे 4 ऑप्शंस इस तरीके से होंगे कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो हमारा रीजन है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग. बी स्टेटमेंट, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो हमारा रीजन है इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो हम लोग पॉइंट बी को टिक करेंगे. सी पॉइंट की तरफ चलते हैं. असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि असर्शन तो ट्रू है बट हमारा जो रीजन है इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ फॉल्स, तो हम लोग टिक करेंगे हमारे सी ऑप्शन की तरफ. बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारे डी ऑप्शन की तरफ. बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों फॉल्स हैं. ठीक है, पढ़ने पर हमें पता चल रहा है असर्शन भी फॉल्स है, हमारा रीजन भी फॉल्स है. अब हम पढ़ते हैं हमारा असर्शन क्या कह रहा है. क्लोन्स, क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स अब दे रखा है इन्होंने हमें असर्शन में. क्लोन्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में जब समरी करवाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स जस्ट लाइक ऑफ द पेरेंट. ठीक है, अब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको उसमें बताया, उनमें वन हमारे पास one parent is involved. There is no need for the two parent, only single parent is involved for the reproduction, and clones are the offspring of an organism that are formed by asexual reproduction. No doubt जो clones होते हैं वो भी offsprings हैं किसके, of an organism that are formed by the asexual reproduction. Clear to all of you? तो हमारा जो assertion है वो clear है. अब हम देखते हैं क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट. आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसमें जो हमारा बेबी प्रोड्यूस होगा, इट इज़ नॉट अ कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. उसके जो हैं फीचर्स, इट विल बी मैच विद देयर पेरेंट, बट इट विल बी नॉट अ कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी और एग्जैक्ट कॉपी मीन्स बिल्कुल सेम एज द बेबी विल बी लुक सिमिलर एज टू देयर पेरेंट. ठीक है, बट जो हमारा असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, दे विल बी एग्जैक्ट कॉपी और विल बी द कार्बन कॉपी ऑफ द डीएनए एज देयर पेरेंट. इट मीन्स जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इस सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों के पास दे रखा है केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. हम लोग पैराग्राफ रीड करते हैं. क्या लिखा है इस पैराग्राफ में? द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल. आप लोगों को पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये जो पॉपुलेशन है इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है, अब ये कॉज बनता जा रहा है हमारे कंसर्न का. हम लोगों को ध्यान देना है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स. द रेट ऑफ द बर्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस देयर पॉपुलेशन. ठीक है, जो पॉपुलेशन जो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो किससे बढ़ती जा रही है? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर द रिप्रोडक्शन इज अ ग्रेजुअल and takes place while germinal body is still going on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that mind or body is ready for sexual acts or for having and bringing up children. Various contraceptive devices are being used by the human beings to control the size of the population. These are the ways with the help of which we can stop or we can decrease the growth of the population. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आप लोगों को ये पैराग्राफ आप लोगों ने रीड कर लिया. नाउ वी हैव टू गिव द क्वेश्चंस ऑफ these we have to give the answers of these questions that are based on this paragraph. The statement of first question, it is the success of birth control program in controlling population growth is dependent upon. आप लोगों ने अभी लास्ट पैराग्राफ में, उसमें जो पैराग्राफ देखा उसमें लास्ट लाइन में लिखा था कि आप लोगों ने जो है बर्थ प्रोग्राम, द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, इसको कंट्रोल करने के तरीके कैसे हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे. देयर आर डिफरेंट ऑप्शन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट इज ट्यूबेक्टोमी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, वेस्क्टोमी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अबव बाय द पीपल. अब सबसे पहले हमें तो मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज अ ट्यूबेक्टोमी. You know that it is a surgery that is done on the body of the female to block the उनकी fallopian tubes को block करना. ठीक है, with the help of which they are not able to the process of the reproduction. ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्यूबेक्टोमी, it is also helpful for control the birth program. Second is use of contraceptive pills. We know that this is another method with the help of which we can control the reproduction. Vasectomy is also the process that is done on the body of the males. Okay. With the help of which they are not able to produce a sperm, and the sperm is not produced, it means reproduction will not take place. So it is also another method with the help of which we can control the process of reproduction. Last point is acceptability of above the by the people, कि ये तीनों programs को हम लोग use कर सकते हैं to control the process of reproduction. तो जो answer correct होगा for this question, it is option D. Clear to all of you? कि हम लोग इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए वी कैन कंट्रोल द बर्थ प्रोग्राम. इट इज़ ओके टू ऑल ऑफ यू? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्यूबर्टी इन द फीमेल बिगिंस एट द एज ऑफ. यू नो दैट बेटा जो प्यूबर्टी है ये जो स्टार्ट होती है ये पहले गर्ल्स में कुछ और एज में स्टार्ट होती थी, बट एज वी
ग्रोइंग, हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन. दो प्यूबर्टी इन द फीमेल्स इट जनरली बिगिंस, आप लोग देख सकते हो, इट विल बिगिंस इन द गर्ल्स एट द एज ऑफ 11 to 13 years. So the right answer for this question it is option A. आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए प्यूबर्टी और एडोलसेंस पीरियड क्या होता है. जनरली द टीनेज पीरियड, दे आर द बॉडी स्टार्ट्स टू, जो बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इन द फीमेल बॉडी दिस चेंजेस स्टार्ट एट द एज फ्रॉम 11 to 13. इट इज़ ओके टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम लोग केस एंड सोर्स बेस के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. द टाइम पीरियड when the body undergoes changes leading to reproductive maturity, it is called, different options देखिए, it is called growth, it is called sensing, it is called development, or it is called adolescence. So right answer it will be adolescence. It is okay to all of you. The time period when the body undergoes changes, जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो गए, हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो गए, leading to reproductive maturity, the body is capable for the reproduction. Such time period that is achieved in the body of the male and the female, it is called adolescence period. It is okay to all of you. Generally पहले हमें जो adolescence period बोला जाता था, generally it is called teenage period. It means from 13 to 19. But generally अब ये time limit change हो चुका है. 11 years के जो males और females हैं, दे जनरली उनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी है इट इज़ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो दिस टाइम पीरियड इट इज नोन एज द एडोलसेंस पीरियड. नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्डर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेंज सीन इन गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स देखे होंगे. अब इनमें से देखना है कि हमारा जो कौन सा पॉइंट है दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द बॉडी ऑफ द गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए, ब्रॉडर शोल्डर्स. ये जो ब्रॉडर शोल्डर्स है, दिस इज सीन इन द बॉडी ऑफ नॉट फीमेल्स, इन द बॉडी ऑफ द मेल्स. सो इट विल बी नॉट द राइट आंसर. क्रैकिंग ऑफ द वॉइस, वॉइस की जो क्रैकिंग है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी ऑफ द मेल. ब्रेस्ट डेवलपमेंट इट कैन बी सीन इन द बॉडी ऑफ द गर्ल्स फीमेल. ओके, एंड द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, दिस इज ऑल्सो सीन इन द बॉडी ऑफ द मेल. So right answer for this question, the which among the following is a change that can be observed during the body of the girls during puberty. So the right answer for this question it is point C, breast development. I hope it is clear to all of you. Now I am moving toward the next question, Adam's apple. You know that what is a Adam's apple? Adam's apple it is prominent. ये किस में किसकी बॉडी में आप लोगों को ऑब्जर्व होगा? Adam's apple. We are moving toward the options of this question. There are 4 options as you can see on the screen. The first option it is the boys of any age. B option is adolescents girls. C option is girls of any age. And the last and the D option for this question it is adolescents boys. So as you very able to know understand this chapter, so right answer मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, the correct answer for this question it will be option D. The Adam's apple can be observed in the boys of adolescence period. It is okay to all of you. Now I am moving toward the next question. This is a short answer type question. Okay, मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप लोगों ने देखना है कि जनरली 3 मार्क में पूछा गया है या कितने मार्क में पूछा है, तो आप लोगों को वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है. ये नहीं कि आप पूरी की पूरा पेज इसी के ऊपर आप लोग लिख दो और पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ही बहुत कम बचा है. तो आप लोगों ने प्लीज़ टाइम लिमिट का ध्यान रखना है. हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं. वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन. यू हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. हम लोगों को इस स्टेटमेंट पर जस्टिफाई करना है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है ये या फॉल्स है. स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन. काफ़ी हद तक ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. वी नो दैट इट इज़ ट्रू at maximum time. Variation that confirm an advantage to an individual organism will survive in a population, but it will be not 100%. हर जगह पर ये जो है स्टेटमेंट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू 100%. ठीक है, कई जगह पर ठीक है ये हेल्प करेगी, वेरिएशन हेल्प करेगी हमारी कन्फर्म, हमारे लिए एडवांटेज है. टू कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन बट नॉट ऑलवेज.
हर बार नहीं होगा, बिकॉज जो हर तरह की वेरिएशन होती है वो इट विल बी नॉट एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब ऐसी वेरिएशन जो बाय जेनेटिक्स जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हुई है, दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल, ठीक है। और वो जो वेरिएशन जो उसने खुद अपनी बॉडी के अंदर विकसित की है या उसने ग्रो करा है, दैट टाइप ऑफ द वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। अब इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया सपोज करो बैक्टीरिया के अंदर अपने जेनेटिक्स अपने पूर्वजों से एक चीज़ उनके अंदर ये ट्रांसफ़र हुई है कि दे कैन रेजिस्ट द हाई हीट और हाई टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर वो खुद ही नहीं सर्वाइव करना चाहते तो वो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे उसके साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो वेरिएशन जो बॉडी के अंदर खुद ब खुद पैदा होते हैं ताकि हम एटमॉस्फेयर के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर सकें, ओनली दैट वेरिएशन दैट हेल्प फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। अदरवाइज जो जेनेटिक्स जो ट्रांसफर होंगे इट विल बी नॉट 100% हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये देखो क्वेश्चन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेट इन ब्रीफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फर्टिलाइज्ड एग और zygote टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों को बताना है कि ब्रीफ में कि जो चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्या चेंजेस आए टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर वो जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को पता है व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मीन्स मिक्स होना, आपस में मिलना। फ्यूजन किस चीज का? फ्यूजन मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट अगर हम बात करते हैं, द मेल गैमेट स्पर्म इट इज कंबाइंड विद द एग दैट इज अ फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पर्म, अगर हमारा जो स्पर्म है दैट इज कंबाइंड विद द एग, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। क्या बनता है इन दोनों के मिक्स होने से? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिक्स होने से क्या बनेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग की रचना होगी। इट विल बी फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों ने आपस में कंबाइन करा, फ्यूजन हो गया। दिस प्रोसेस इट इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। अब पूछा गया है स्टेट इन ब्रीफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग आपका जो फर्टिलाइजेशन से बना है, अब बर्थ तक, ठीक है, टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो फ्यूजन है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, इट टेक्स प्लेस इन द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब में इसकी जो है स्टार्टिंग वहाँ पर होती है, बट द ग्रोथ ऑफ द एग इट इज नॉट टेक प्लेस इन दैट फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फिर फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ ये जो हमारा एग है इट विल बी ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। और यहाँ पर यूट्रस में ये कि हमारा ये जो हमारा फर्टिलाइज एग है इट विल बी वो ग्रोथ करेगा एंड स्लोली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रो। एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग जहाँ पर इसकी फुल ग्रोथ हो चुकी है। और आप लोग इसके बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वी आर एबल टू सी द डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द बेबी एंड दिस डेवलपमेंट इज टेक प्लेस inside the uterus. Is it okay to all of you? And the period where the embryo takes the full growth in the uterus, this is known as the gestation period. Okay? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द एग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्पर्म जो है एग के साथ कंबाइन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, देन व्हाट विल हैपन? एग को क्या होगा? व्हाट हैपन टू द एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज? एग विल बी रिटर्न्ड बैक, एग वापस चला जाएगा, इट विल बी नॉट रिटर्न्ड बैक विद द लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग takes place in the body of the female because a thick layer of the uterus wall is cracked, ठीक है। क्योंकि एक हमारी जो थिक वॉल है जो यूट्रस की वो क्रैक हुई है, विद द हेल्प ऑफ विच लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग इज टेक्स प्लेस एंड
no reproduction process will be can be seen in the body of the female. I hope it is clear to all of you. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है आज यहीं पर ख़त्म हो गया है. आई होप मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड व्हाट यू हैव लर्नड या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए हैं. बेटा प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और 3 बातों का मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिए. आप लोगों ने टाइम लिमिट का ध्यान रखना है. जितने मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है उसे उतने ही वर्ड्स में ख़त्म करना है और इन वीडियोस को बार बार देखना है, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों की नेचुरली आपकी हेल्प करेंगी आपको गुड मार्क्स आपको अचीव कराने में. ओके, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.